Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what will you complete and achieve before this year's Diwali. तो इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have awareness, pile 2 cleansing, pile 3 डिविनिटी. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. और अभी इन कार्ड्स का पास से स्क्रीनशॉट आएगा, तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हैं. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन से कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑलराइट, अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक से ज़्यादा कार्ड आपको लगता है मेरे लिए ग्लो कर रहा है, मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करना. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक करना. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को पिक करना. ऑल राइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the awareness card. It says maintain awareness, be present in every moment. So आपने इस पाइल को अपने इंट्यूटिवली पिक करा, या फिर आपने इस पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है. आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with the reading. First of all, whenever I see this card, this eye card, there's this extreme or maybe silent emotion which is going to be there. Like this time when I saw this eye card, so I really felt that there is fear. Maybe fear of unknown, maybe fear of something which will happen in the future, or अगेन इन जनरल फियर ऑफ फ्यूचर कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया, क्या मैं उसमें पास हो पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं हो पाई तो फिर इट्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर एटलीस्ट फॉर यू. कोई फ्यूचर को लेकर फियर, लाइक आई स्मेल फियर एज वेल. या यू कैन स्मेल फियर एंड कैन सी फियर इन आईज. सो इस बार ये फियर वाला एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. मे बी यू आर फियरफुल अबाउट समथिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट फील दिस वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. What will you complete and achieve before this year's Diwali? So pile 1. Okay, we have King of Wands. All right, you are gonna achieve or complete something related to your passion, something which you are truly working upon, जिसमें आपका दिल है, जिसके अंदर आपका मन है, वो चीज़ आप complete और achieve कर रहे हैं. ये यहाँ पर शो हो रहा है.
Then we have Three of Cups. Literally, Three of Cups shows party, celebration, being with the like-minded community, people who truly, love you. They are proud of you. They are proud of your effort. They're proud of what you have achieved. And I also feel that many of you are completing your fitness goals. Maybe you wanted to lose weight, or maybe you wanted to gain weight. You wanted something related to even fitness. It can be, you wanting a good mental health, you wanting a good physical health. You're achieving this before this year's Diwali, I see. Now maybe you're facing your fears. Now maybe you're working on your physical and mental health. Maybe you were working for quite a while now on this. बट चीज़ें नहीं इतना फॉरवर्ड मूव करी. बट आप देखेंगे दिवाली को ऑलमोस्ट लाइक 1 month रह गया है. दिवाली इज़ आई थिंक ऑन 20th of October, 3rd week का फर्स्ट डे उस पर दिवाली है. और आई वुड से दैट कहीं ना कहीं चीज़ें अब फॉरवर्ड मूव करेंगी, फास्ट फॉरवर्ड वे में फॉरवर्ड मूव करेंगी. फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर है. एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके अंदर एक एक्सट्रीम पैशन किसी चीज़ के लिए जागेगा और आप उसे कंप्लीट करके दिखाएंगे नेक्स्ट 1 month में. ये यहाँ पर शोर है. एंड यू विल सेलिब्रेट व्हेन यू अचीव दैट थिंग, व्हेन यू गेट दैट थिंग. कहीं ना कहीं एक जैसे एक सांस आपने ली है उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद, चैन की सांस, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा फील यहाँ हो रहा है. देन वी हैव हायरोफेंट. इन हायरोफेंट एज वेल वी सी पीपल अराउंड यू. सो कोई चीज़ तो ऐसी आप अचीव कर रहे हैं, कोई चीज़ तो आप ऐसी कंप्लीट कर रहे हैं जिसको लेकर यू आर रियली हैप्पी एंड यू आर टेलिंग अदर पीपल दैट यू कैन इवन डू दिस, यू कैन इवन द थिंग विच आई डिड, यू कैन इवन डू इट. मे बी यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल, मे बी यू आर मोटिवेटिंग अदर पीपल कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो. ऑलराइट, अगर आपने ठान ली है तो आप भी कर सकते हैं जो मैंने करा. ऐसा एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया. हायरोफेंट इज़ बेसिकली जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन. क्योंकि हायरोफेंट गुरु के बारे में भी है, रिलीजन के बारे में भी है, और हायरोफेंट एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बारे में भी है. इफ़ यू हैव जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन, ऑलराइट, और कोई प्लैनेट ट्राइन में नहीं बैठा और जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट है, या जुपिटर सैटर्न एक दूसरे के ट्राइन में है 5-9 places अवे फ्रॉम ईच अदर, और कोई प्लैनेट का दखल अंदाजी नहीं है और कोई प्लैनेट ट्राइन में नहीं है इन प्लैनेट्स के, तो डेफिनेटली इट शोज़ कि जो आपके गुरुज मेंटोर्स होंगे वो स्ट्रिक्ट होंगे, आपको डिसिप्लिन करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने गुरुज मेंटोर्स या टीचर से दोस्ती नहीं करना चाहोगे. आप एक रिस्पेक्ट उनके प्रति चाहते हो. मतलब आप लाइक यू वुड हैव सीन देयर आर गोना बी सम पीपल हु मेक द गुरुज एंड टीचर्स देयर फ्रेंड्स इन दिस डे एंड एज, विच इज़ फाइन. बट एक जुपिटर सैटर्न वाला पर्सन जो होगा वो नहीं चाहेगा कि उसका टीचर उसका दोस्त बने. एज सच एक मर्यादा होती है, वो नहीं लांघना चाहता. हाँ, वो अपने टीचर गुरु से चीज़ें शेयर करेगा, बट एक मर्यादा में रहकर, तो उस मर्यादा को नहीं क्रॉस करता वो, और अपने गुरु मेंटोर के लिए हाजिर नाजिर रहता है. तो हायरोफेंट इज दिस एनर्जी. इट शोज मी दैट यू विल अचीव समथिंग बिफोर दिस ईयर्स दिवाली एंड पीपल विल सी दैट you did achieve something big and you were truly passionate about it and finally you achieved this. Now people are gonna come to you and ask you, भाई कैसे करा, ये चीज़ कैसे कंप्लीट करी, ये चीज़ कैसे आपकी लाइफ में हुई. लाइक पीपल इंटरव्यूइंग यू कि ये हुआ तो हुआ कैसे, एंड देन यू आर टेलिंग देम दैट आई डिड दिस, आई डिड दैट, एंड voila, I got this. But yeah, there was sheer discipline, hard work as well. All right, so you're telling them this, and people may even want to learn this thing from you. Maybe आप 1 महीने बाद उस चीज़ का कोचिंग देना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ के बारे में दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं. दिस कैन इवन हैपन. यू समहाउ बिकम द गुरु मेंटोर फॉर अदर पीपल. यू समहाउ बिकम द गाइड फॉर अदर पीपल 1 month फ्रॉम नाउ, बिकॉज यू आर गोना अचीव समथिंग जिसको लेकर यू वर ट्रूली पैशनेट अबाउट. इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी सम फिटनेस गोल, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर करियर एज वेल. जिस चीज़ के प्रति वो एक चिंगारी है आपके अंदर, एक आग है, एक फायर है आपके अंदर, है ना, वो चीज़ आप अचीव कर रहे हैं. देन वी हैव डेविल हेयर. द डेविल हेयर अगेन शोज द फायर एलिमेंट एज वी सी थिंग्स आर बर्निंग एंड a person is in bondage, a person is unable to overcome something. तो डेविल एनर्जी वाली चीज़ है. डेविल इज़ राहु एलिमेंट. राहु ऑब्सेशन है. तो किसी चीज़ को लेकर यू आर ट्रूली ऑब्सेस बट यू आर नॉट एबल टू गेट दैट थिंग. आप वो नहीं, आपको मिल पा रही थी वो चीज़, और फाइनली राहु का जो एक राहु सर पे चढ़ जाता है,
राहु का सर पे चढ़ना मतलब कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें हो गया है ये ब्रेन फॉग हो गया है, हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं, हम लेज़ी हो जाते हैं, हमारे पास प्लान है बट हम उसे प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। देन ऐसे कि ये सर पे राहु चढ़ा है और साथ में क्लैरिटी ऑफ माइंड या वो ब्रेन फॉग तो है ही, बट पेट भी खराब है तुम्हारा, लार्ज इंटेस्टिन का इशू है। राहु इज़ लार्ज इंटेस्टिन, तो अगर लार्ज इंटेस्टिन में गंदगी जमी हुई है यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो जो हेल्थ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस एट टाइम्स, नॉट एवरी टाइम बट स्पेशली राहु की दशा चल रही हो, स्पेशली राहु अगर असेंडेंट में आपके बैठा है, मून राहु का कंजंक्शन है, मून ट्राइन में है राहु के, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है मून राहु, या मून के आगे वाले घर में राहु प्लेस है, मरकरी राहु का कंजंक्शन है, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है। ऐसे लोग चाहे दशा राहु की रन करें या ना करें, इन लोगों को इशू आता है, ब्रेन फॉग का इशू आता है, आइडियाज़ ना आना या आइडियाज़ होते हुए भी प्रैक्टिकल रियलिटी में ना कन्वर्ट कर पाना। एंड देन दे विल से दिस थिंग कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ, मैं करना जो चाहता हूँ मैं बंधा हुआ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। दैट इज़ राहु टॉकिंग, लिटरली दैट इज़ राहु टॉकिंग। सो कहीं ना कहीं राहु का इशू तो है, पाइल नंबर 1। और यहाँ पर इस वजह से फिटनेस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप चाहे जिम जाते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, यू आर स्वेटिंग, यू आर आपका स्टमक बेटर होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एंड बेसिकली वेस्ट को आप निकालते चले जाते हैं अपनी बॉडी से थ्रू स्वेट एंड थ्रू अदर थिंग्स इन द वॉशरूम। सो बेसिकली राहु जब निकलता है बॉडी से, गंदगी, लार्ज इंटेस्टाइन में गंदगी अगर वो जम जाए तो फिर डिस्टर्ब ही कर रही है वो जो है वो गैस जो नीचे से निकलनी चाहिए वो सर में चढ़ जाएगी और फिर ब्रेन फॉग करेगी। तो कहीं ना कहीं फिटनेस इज़ देयर, लाइक समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस ऑफ द बॉडी, वैसा आप कुछ कर रहे हैं। मे बी यू जस्ट सिंपली वॉन्ट टू बिकम फिट, ब्यूटिफुल और हैंडसम बिफोर दिवाली, बिकॉज यू गोना मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू वॉन्ट टू गिव अ गुड इम्प्रेशन, और यू जस्ट वॉन्ट टू फ्लॉन्ट योर सेल्फ। So maybe you're trying to eat healthy as well, you're trying to exercise as well। और जब आप ये सब करना शुरू करते हैं, आप अपनी बॉडी का टेक केयर करना शुरू करते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ऑटोमेटिकली टेक केयर करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाता है, और फिर जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं आपको लगता है भाई मैं नहीं करूँगा अचीव तो कौन करेगा, है ना। तो ये एनर्जी भी फिर आपके अंदर आ जाती है और फिर जो आपने ठाना है वो आप कर भी पाते हैं। सो इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स लाइक अ साइकिल। फिटनेस ऑफ द बॉडी पे ध्यान दिया, मेंटल हेल्थ भी बेटर हो गया, फिर करियर पर ध्यान अपने आप आ जाता है, करियर में कुछ अचीव कर लेते हैं, एंड दिस इज अ साइकिल विच यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी नाउ। ऑलराइट, सो ये जो बॉन्डेज है, ये जो लेजीनेस है, ये जो आपको लगता है कि मुझ में ये कमी कमज़ोरियाँ हैं, इनको आप ख़त्म कर पाते हैं अब। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट 30 डेज आप इनको ख़त्म करके आगे निकल पाते हैं और आपका स्टमक बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह उठते ही आपको क्या पता भूख लगनी शुरू हो जाए, विच इज़ अ साइन दैट योर बॉडी इज़ हीलिंग, योर बॉडी इज़ गोइंग टूवर्ड्स बेटरमेंट। ऑलराइट, सो ये साइंस भी आपको मिलते रहेंगे। डेविल एनर्जी, अगेन राहु एलिमेंट ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं जो आई वुड से सोशल मीडिया है, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर्स है, इससे रिलेटेड आप कुछ करेंगे, या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आपके सडनली बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, आपके सडनली बहुत सारे व्यूज़, लाइक्स, जो भी ये सब चीज़ें आ जाता है, आप अपने आईटी फील्ड में बहुत आगे निकल जाते हैं। मैनी ऑफ यू आई ऑल्सो फील आर फीलिंग लाइक maybe I need to change something in my career. Many of you are feeling this way. You are feeling कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे को कंप्लीट चेंज नहीं चाहिए अपने करियर में, मैं जिस फील्ड में हूँ मैं उसी फील्ड में रहना चाहता हूँ। ऑलराइट, बट थोड़ा सा बदलाव, लाइक yesterday only I was doing someone's reading, तो वो एक लॉयर हैं, तो वो अब जो है टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉ जो है उसमें वो जाना चाहते हैं, और उनका सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन भी बनने वाला है अभी कुछ ही महीनों में। तो वो सोच भी शुरू हो चुका है दैट आई वांट चेंज, बिकॉज सैटर्न इज करियर, मून इज़ अबाउट चेंज, ट्रैवल। ऑलराइट, तो वो बदलाव चाहते हैं एंड इट मेक्स सेंस। सो उसी तरह पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आप भी कुछ बदलाव चाहते हैं। मे बी यू आर नॉट रियली चेंजिंग योर करियर फील्ड। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से आप जो है आप इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बट
थोड़ा फील्ड में ही थोड़ा बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके थोड़े डिफरेंट इंटरेस्ट्स नज़र आ रहे हैं। मे बी इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन MBBS स्टूडेंट, या आप MBBS कर चुके हैं, तो मे बी यू फर्स्ट थॉट दैट आई विल बिकम अ गायनोकोलॉजिस्ट, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना, मे बी आई वॉन्ट टू गो इन टू डर्मेटोलॉजी समथिंग, मतलब चेंज ऑफ फील्ड। ऐसा बिल्कुल भी एक हटके बदलाव नहीं, बट अपनी फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आप चाहते हैं और उसको आप कर पाएंगे विद इन अ मंथ। यू विल बी एबल टू स्विच, ये नज़र आ रहा है। मे बी एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाए, सेम कंपनी में डिफरेंट उसमें चले जाएं आप, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं, ऐसा कोई स्विच भी नज़र आ रहा है। यू फाइनली विल मेक दैट मूव एंड यू फील वेरी गुड इन द न्यू फील्ड विच यू आर गोना जॉइन, है ना। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। समथिंग मॉर इफ़ वी कैन गेट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी डेक, भाई क्या चीज़ पाइल नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं before this year's Diwali. So we have the Capricorn persistence. So yeah, it is definitely related to career. Career में आप कोई चीज़ achieve करें, complete करें. If you're a student as well, then also I would say the same thing, that in education as well you're achieving something. Maybe you're giving some exam and you're quite fearful about it कि पता नहीं भाई कैसा होगा, पहले भी शायद आप उस चीज़ में fail हो चुके, but you're again giving this exam because you feel like that this time I will be able to achieve the success which I want. So अब आप उस चीज़ के प्रति फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस बार आप पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एवरीवन इज़ रियली हैप्पी एंड पीपल, वो कहते हैं ना कि शर्मा जी के बेटे ने ऐसा करा वैसा करा, यू बिकम दैट शर्मा जी का बेटा एंड यू विल पीपल, मतलब लोग आपके फिर मिसाल देते हैं कि भाई इन्होंने करके दिखाई है ये चीज़। सो कुछ ऐसे आप नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी में आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न नेम एंड फेम का भी है ना साइन। कैप्रिकॉर्न या 10th हाउस हो गया, असेंडेंट हो गया, दीज आर विजिबल साइंस या विजिबल हाउसेज। इवन 7th हाउस लिब्रा साइन भी विजिबल होता है। ऑलराइट, सो इट्स अबाउट मार्केट प्लेस। तो आप बाहर जाते हैं दुनिया में तो दिखते हैं ना ऑब्वियसली, तो मार्केट प्लेस पर है, तो यानी आपका करियर में आप जो करेंगे वो बाहर सभी को दिखेगा। अगर आप ये देख रहे थे कि मैं ही हार्ड वर्क करी जा रहा हूँ और मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कोई और मेरा अप्रिसिएशन लेकर जा रहा है, तो फाइनली यू विल नोटिस कि अब से जो है इन द नेक्स्ट 30 days आपके काम का आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम का आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी, बोनस एट्सेट्रा ये चीज़ें मिलेंगी। आप परसिस्टेंट एक आई वुड से कंसिस्टेंट वे में काम कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। पहाड़ जैसी मुश्किल चीज़ों को भी आप पार कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को भी आप पार कर पाते हैं। देन वी हैव सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, देखिए अभी हम सैटर्न जुपिटर की बात कर रहे थे, सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन, सैटर्न जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि धर्मादि कर्मादि योग है। मैं इसमें हायरोफेंट में हम बात कर रहे थे, कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न, सेजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर। तो जुपिटर सैटर्न का कहीं ना कहीं जोड़ी तो है। जुपिटर सैटर्न आपके चार्ट में कंजंक्ट हो सकते हैं, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है। जुपिटर के आगे सैटर्न या जुपिटर के पीछे सैटर्न ज़रूर होगा, ऐसा नज़र आ रहा है, जो कि आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा इस लाइफ टाइम में और आप पूरी उम्र काम करते रहेंगे। वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क इज़ वर्शिप फॉर यू गाइस। कहीं ना कहीं आप सेजिटेरियस राइजिंग या कैप्रिकॉर्न राइजिंग इंडिविजुअल होंगे, या फिर आपका मून जो है सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड होगा। Alright, this Sagittarius sign does shows it says joy. So yeah, you are gonna feel really happy when you complete and achieve these things. And next 30 days happy, joyful ही जाएंगे, क्योंकि आप हर दिन चढ़ती कला में हो, हर दिन बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो। तो यू आर गोना बी हैप्पी बिकॉज आप अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे। जो हर रोज़ आपके गोल्स आप बनाते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे कि भाई आज मेरा ये काम है, परसों मेरा ये काम है ना, आप उनको अचीव कर पाते हैं। और सेजिटेरियस ये भी शो करता है कि आप किन्हीं धर्म वाली चीज़ों में, कर्म धर्म वाली चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहेंगे। आप किसी गुरु मेंटोर के गाइडेंस में होंगे, आप खुद या तो गुरु मेंटोर बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। समथिंग मॉर इफ वी कैन से। वैसे सेजिटेरियस ये भी शो करता है मे बी यू अटेंड अदर पीपल्स वेडिंग, यू मे अटेंड सम रिलीजियस स्पिरिचुअल सेरेमनी, ऐसा, या बर्थडेज आप अटेंड करें नेक्स्ट 1 month में, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि नहीं सेलिब्रेशंस का पार्ट आप बन रहे हैं। ऑब्वियसली नवरात्रि आ रही है तो वो भी सेलिब्रेशन है ना, वो भी एक रिलीजियस चीज़ है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे तो त्यौहार आ ही रहे हैं, इस बार इन त्योहारों का आप बहुत आनंद उठाएंगे, ये भी नज़र आ रहा है विद सेजिटेरियस साइन।
Then we have creativity. It says creativity is your inner expression, unleash it. So yeah, creativity does shows that आपके हर कर्म में creativity, आपके हर कर्म में एक uniqueness है. Maybe many of your you guys have names starting with R. आप में से काफ़ी सारे लोगों का नाम आर से शुरू होता है, विच शोज़ कि भाई आप जो भी काम करते हैं आप चाहते हैं कि आपकी उसमें तारीफ़ हो, आपको तारीफ़ें सुनना बहुत 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 पसंद है, और जिस चीज़ में तारीफ़ ना मिले वो चीज़ भी आप छोड़ देते हैं, पर जो भी चीज़ करेंगे अपने एक अलग स्टाइल से करेंगे. भाई सिंपल सी चीज़, कॉफ़ी भी बना रहे हैं तो अपना एक स्टाइल से कॉफ़ी बनाएंगे, अपना फ्रॉथर होगा, अपना कॉफ़ी मशीन होगी, या जो भी एक्स्ट्रा क्रिएटिव वे में कॉफ़ी बनाना है, या आप कोई भी काम करें उसमें अपना एक क्रिएटिविटी का तड़का आप ऐड करते हैं. मैनी ऑफ योर नेम कैन स्टार्ट फ्रॉम आर, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और क्रिएटिविटी इट ऑल्सो shows me that many of you are gonna do painting, dance, music से related कुछ आप करेंगे, गाना आप गाएंगे, और वो भी लोगों के सामने ऐसे, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं. इस हायरोफेंट कार्ड में मेरे को बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, और जहाँ धर्म कर्म की बात होती है, रिलीजियस स्पिरिचुअल या सेलिब्रेशन कोई है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं. तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपका क्रिएटिविटी आप शो करेंगे, चाहे वो म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, कुकिंग है, कलनरी आर्ट्स है, मतलब जो भी आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ है. शायद आपको अभी भी पता नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें हैं, बट वो अब बाहर आएंगी क्रिएटिव चीज़ें, और लोग भी उसको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग कार्ड. So this shows me understanding is the key to deep connection. This shows me, this card says कि भाई आपको बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करने वाले मिलेंगे. मतलब आप शायद पहले कहते थे भाई लोग मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, मेरे को गलत समझते हैं. नाउ पीपल आर सडनली गोना स्टार्ट टू अंडरस्टैंड यू. आपको समझना शुरू करते हैं, आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं. जहाँ लगता था ना कि ये लोग जो हैं इनके मन में मेरे प्रति कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या ये लोगों को इम्प्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर पीपल, बट नेचुरली दे आर गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय यू. आई सी दिस फॉर यू. सो आप बहुत सारे लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी एक बहुत अच्छी मेमोरी का पार्ट आप बन रहे हैं, या बहुत अच्छी मेमोरी आप उनकी बनवा रहे हैं अपने साथ. देन वी हैव सोनेट. इट सेज एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट. आई डोंट वो जो गाड़ी है ना सोनेट, किसकी गाड़ी है, किया की गाड़ी है ना, मेरे को उसकी एकदम से याद आ गई. मैनी ऑफ यू मे बी आर गोइंग टू द किया शोरूम एंड सीइंग द सोनेट कार, या उनकी जो भी गाड़ियाँ हैं वो शायद देख रहे हैं. एंड या सो मे बी आर गोइंग टू कार डीलरशिप्स, एंड स्पेशली आफ्टर द GST कम होने पर. आई थिंक उससे पहले GST कितना था, 28% था. आई डोंट नो, 2080 था, और अब 18% हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वट एवर इट इज़, GST तो कम हुआ है गाड़ियों से, या 40% की उसमें आता था, आई डोंट नो, वट एवर इट इज़. ये बात हम आई थिंक इस महीने के मंथली जो बनाते हैं ना, मंथली हॉरोस्कोप में भी था, जो इस चैनल पर ही, उसमें भी आई सेड कि कहीं ना कहीं गाड़ी आ रही है घर पे. मे बी आप खरीद रहे हैं, या आपके परिवार में कोई खरीद रहा है. So maybe you guys are buying a car or some kind of vehicle. This can happen in the next 1 month, all right, and you're really happy about it, and kahin na kahin you wanted to buy it for a very very long time, and finally you will get it. बाकी यहाँ पर यही लिख रहा हुआ है कि express your creative heart. So maybe आप अपने ही अंदर उस क्रिएटिविटी को रखते थे, आप दूसरों को अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाते थे. मे बी यू वर इनसिक्योर दैट व्हाट विल पीपल से अबाउट माई आर्ट एंड ऑल, बट अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो आप दूसरों को दिखा पा रहे हैं, और आपको उसका अप्रिसिएशन भी मिलता है. दैट्स वंडरफुल. कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है. सो दैट्स वंडरफुल. देन वी हैव फॉलो द स्पार्क. अभी हम यही बात कर रहे थे, आई डोंट नो मैं डेविल में कही थी या किंग ऑफ वॉन्ड्स में बात की थी. एक स्पार्क है, एक चिंगारी है आपके अंदर है, ये शब्द मैंने यूज़ करा, जो अब काफ़ी ज़्यादा एक पकड़ रहा है, आग पकड़ रहा है. मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिव स्पार्क डेफिनेटली है, और आप उस स्पार्क को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों को दिखा पा रहे हैं, एंड पीपल लव व्हाट यू आर डूइंग, आई सी.
एंड जैसे वी सी द स्नेक प्लांट हेयर, तो स्नेक प्लांट वी ऑल नो कि हार्श सिचुएशंस में भी उगता रहता है, उसे कई बार पानी भी नहीं, अगर पानी देना भी भूल जाए तब भी वो मरेगा नहीं, ऐसा प्लांट है। तो उसी तरह आप भी कहीं ना कहीं स्नेक प्लांट की तरह हैं, आप में भी बहुत ज़्यादा पावर ऑफ रेजिलियंस है, आप को लोगों ने दबाया है बट उसके बाद भी आप उभर के आए हैं, है ना। तो आपके अंदर भी एक पावर ऑफ रेजिलियंस है, ये शो करता है कार्ड। एंड आप दबने वालों में से नहीं हो और आप अपने साथ दूसरों को भी उभारने वालों में से हो, दूसरों की भी एक आवाज़ आप बनते हैं, आप दूसरों को भी अपलिफ्टेड महसूस कराते हैं। आपकी सोच ये नहीं है कि भाई दूसरे डाउन चले जाओ और मैं अप चला जाऊँ अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं। आपका सोच यही है कि मेरे साथ दूसरे भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आप अपने साथ सभी को आगे बढ़ाने वालों में से हो। आपका दिल बहुत बड़ा है, पाइल नंबर 1। सो yeah, that was pretty much it for you. This is something which you're completing and achieving before this year's Diwali. So एस्ट्रोलॉजिकली जैसे देखें तो ऑफकोर्स मैंने कहा कि जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट हो सकता है, जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, हरमादी कर्मादी योग होगा। जुपिटर या सैटर्न में से ही कोई प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है, फिर मून आत्मा कारक प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है। और जो साइन है ऑफकोर्स कैप्रिकॉर्न का, सेजिटेरियस का, एक्वेरियस का, पाइसिस का, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। इवन कैंसर साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट एज वेल, मतलब इसमें भी आपके प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। स्पेशली जैसे कैंसर में अश्लेषा नक्षत्र है, कैप्रिकॉर्न में श्रावण धनिष्ठा है, एक्वेरियस में धनिष्ठा है, अगेन धनिष्ठा स्पिल करता है, पाइसिस में रेवती नक्षत्र है। ये नक्षत्र इवन उत्तर भाद्रपदा, ये नक्षत्र बहुत क्रिएटिव है, इनको म्यूज़िक डांस का बहुत इंटरेस्ट होता है, गाना गाने में बहुत अच्छे होते हैं, ये जो है एडवाइस देने में बहुत अच्छे होते हैं। और ये नक्षत्र वाले लोग जो है ये बहुत आई वुड से बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन भी होते हैं, लोगों को मोटिवेट करने वाले भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको कोई अंदर से जान नहीं पाता। बोलते ही बहुत है, मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है। अर्ली इन लाइफ थोड़ा इनको लोग दबाते हैं, लेटर इन लाइफ वो उभरना शुरू होते हैं, और जो ये सच में हैं वो बाहर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, ये भी एक चीज़ है। मून 8th हाउस हो सकता है जो कि यही शो करता है कि इमोशंस आपके हिडन है, क्योंकि 8th हाउस हिडन चीज़ होगा, मून इमोशन है, मून 8th हाउस में चला गया तो हिडन इमोशंस हो गए। एक पर्सन चाहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को, या किसी के प्रति प्यार है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये उनसे बोला ही नहीं जाता है। उनको लगता है ये कितना चीज़ी हो गया, या ये कितना भाई मेरा मतलब, वो बोल ही नहीं पाते कि हु दे ट्रूली आर और व्हाट दे ट्रूली फील, दे आर जस्ट अनेबल टू एक्सप्रेस। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चीज़ें हैं, और ये नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है। बाकी कैंसर में तो जैसे पुनर्वसु भी है, पुष्या है, अश्लेषा है, फिर सेजिटेरियस, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा कैप्रिकॉर्न में भी स्पिल करता है, फिर श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग काफ़ी अच्छे राइटर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक इन नेचर होता है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग इनका बहुत अच्छा है। बट इनको 34 या 35 की एज के बाद ही ये जो है अनडिफीटेबल बनते हैं, उससे पहले इनको बहुत सारी डिफीट्स का सामना करना पड़ता है, हार खानी पड़ती है। बट 34-35 की एज के बाद उत्तराषाढ़ा वाले लोग, यानी मून या आत्मा कारक का कोई प्लानट है वो उत्तराषाढ़ा में, तो ये असेंडेंट लॉर्ड भी, तो भी ये लोग बहुत राइज करते हैं अगर ये दूसरों का बुरा नहीं कर रहे है। ये इसी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही वो एक और नक्षत्र आता है, अभिजीत नक्षत्र। वैसे अभिजीत नक्षत्र में कोई नॉर्मल इंसान पैदा नहीं होता है, अभिजीत नक्षत्र की डिग्रीज जो है बहुत कम है। मतलब उसमें आई हैवंट सीन एनी वन बींग बॉर्न इन अभिजीत नक्षत्र, वो बिल्कुल अनडिफीटेबल नक्षत्र है, मतलब उसमें कोई पैदा हो जाए ना उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता पूरी लाइफ। आई हैव हार्डली सीन पीपल बॉर्न इन अभिजीत नक्षत्र, जो उत्तराषाढ़ा के अंदर ही होता है। यू कैन गूगल इट, कहाँ किन डिग्रीज पर अभिजीत नक्षत्र है। एंड स्टोरी भी है कि कृष्ण जो थे उन्होंने अभिजीत नक्षत्र को तीर मार के जो है ख़त्म कर दिया है, साइड कर दिया था, सो दैट युद्ध में वो जीत जाए, एनिमी वाला हार जाए उनका। तो कुछ ये भी कहानी है, बाकी आई हैवंट सीन एनी वन बॉर्न इन अभिजीत नक्षत्र। सो
That was pretty much it. This was the reading for you. Pile 1, do let me know how this reading resonates with emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the cleansing card. It says cleanse your mind and spirit, remove negative energy. Okay, there's a message for you, pile number 2. और अगर आपने अगेन अपना इंटुइटिवली कार्ड सेलेक्ट करा, पाइल सेलेक्ट करा, या फिर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve before this year's Diwali? You can tell by my speech, I had coffee. तभी मैं इतना तेज फास्ट बोल पा रही हूँ. So what will pile number 2 complete and achieve before this year's Diwali? Okay, we have Queen of Swords. All right, intense. One thing is very clear, that your energy seems to be quite intense. You're not here to take other people's BS. You're not here to bow down to the wrong side. And you seem to be very clear that I'm going to do this and I'm not going to do that. You're not here to please other people. And हाँ, आप अपनी ज़िंदगी से जो है people pleasing हटा रहे हो. You don't even know when you started to do people pleasing, but you will realize that you are doing people pleasing. आप जो हो वो आप मतलब अपने full potential से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आप people pleasing कर रहे हैं. तो finally you are stopping this thing. Finally you will put a full stop on this people pleasing thing. Then we have Ace of Cups. Ace of Cups यहाँ पर शो करता है कि किन्हीं रिश्तों को लेकर, किन्हीं relationships को लेकर आप people pleasing कर रहे थे. Now you're stopping it. Now you're loving yourself more than anything. Like आप पहले अपने आप को बहुत प्यार करते थे, but then ऐसा हुआ कि आप दूसरों को ज़्यादा importance देने लग गए, and you forgot about your own self. You forgot कि आप last time कब happy थे, खुश थे. So now you're realizing that, oh, I'm missing something in my life, and what I'm missing is me, my happiness. So आप अपने आप को importance दे रहे हैं, आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हैं, आप अपने according चीज़ें करना शुरू कर चुके हैं. ऑलराइट, जो आपके गोल्स है, जो शायद दूसरों के गोल्स को पहले आपने रखा, दूसरों को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, नाउ यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस, नाउ यू आर पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट इन एवरीथिंग. आई सी. All right, then we have the King of Swords. King of Swords again. यहाँ पर Queen of Swords है, यहाँ पर King of Swords again. आपने कुछ डिसीजन लिया है, मे बी अभी लिया है या आने वाले 2-3 दिन में ही आप कोई मेजर डिसीजन लेंगे और उस प्रति आप काम करना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, उस चीज़ को आप कंप्लीट भी कर पाएंगे बिफोर दिस ईयर्स दिवाली. आपने अपनी कमर जो है कस ली है. ऑलराइट, अब आप कहते हो कि अब मैंने बस हाथ धो के किसी चीज़ के पीछे आप पड़ चुके हो और बस अब उस चीज़ को आप अचीव करेंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज़. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. आई मीन दिवाली इज़ ऑलमोस्ट इन अ मंथ. सो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप उस चीज़ के प्रति काम कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड देन वी हैव टेम्परेंस. टेम्परेंस हेयर शोज़ कि ज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके अंदर भरपूर है उस चीज़ को लेकर. ऐसा नहीं है कि बुल की तरह आप अंधाधुंध पीछे पड़ गए किसी चीज़ के, ऐसा नहीं है. आपने उस चीज़ के बारे में रिसर्च करा है, आपने उस चीज़ के बारे में पूरा अपना होमवर्क करा है, एंड देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ. ऑलराइट, एंड इट डज शोज़ विद द टेम्परेंस दैट एक लाइफ में पीस आप महसूस कर रहे हैं, खुशी आप महसूस कर रहे हैं, विच यू डिडंट फेल्ट अर्लियर, बिकॉज आप अपने रियल गोल से भटक गए थे. कुछ और छोटे छोटे कई गोल्स आपने अपने बना लिए थे, एंड you completely forgot about your real goal, and finally you're realizing what is my real goal and you're working towards it now. और बहुत खुशी से उस चीज़ के प्रति काम कर रहे हैं. Many of you are also involved in some religious spiritual activities. Of course नवरात्रि आएगी और है ना, तो ऐसा रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे दिखता है. इस बार त्योहारों को बहुत इन्जॉय करेंगे आपको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है कि शायद
जैसे आर्मी वालों को होता है ना कि दे इन्जॉय एवरी मोमेंट, ये एक आर्मी वालों की बहुत एक अच्छी होती है ये सोच कि भाई आज है जो है, पता नहीं कल क्या है क्या नहीं है, कल हम विल बी अलाइव और डेड और वी डोंट नो, तो आज जो है हम उसको बहुत अच्छे से इन्जॉय करेंगे। तो ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है, यू फील लाइक कि ये हर एक पल ये कितना कीमती है, ये हर एक पल ये हर एक दिन कितना इम्पॉर्टेंट है, और मैंने कितने ही ऐसे पल शायद इन्जॉय ही नहीं करे, उस मोमेंट में मैं रही ही नहीं, मैंने उस दिन को जिया ही नहीं, ऐसा लगता है। सो दिस टाइम इन द फेस्टिव सीज़न, हर दिन आप उस फेस्टिव सीज़न को इन्जॉय करेंगे, उस फेस्टिव सीज़न को जिएंगे, बिकॉज यू समहाउ हैव दिस एनर्जी विच शोज़ कि कल होना, कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आज अच्छे से उसको जिएंगे, आज हम खुश रहेंगे। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। इवन यू हैव सम पीपल विद यू जो शायद आपकी खुशी से जलते हैं, एंड आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू से समथिंग नेगेटिव, सो प्लीज़ उसको लेकर बहुत ज़्यादा ना सोचेगा, बट आई डू फील दैट सम ऑफ योर मदर इन लॉज आर द विलन क्योंकि लाइक विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई जस्ट I'm thinking about mother-in-law. I don't know. I am. Maybe your in-laws, maybe specifically your mother-in-law. They are the villain of your lives, and you know it, and you don't care now कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। You're like, I want to live my own life. So मुझे यहाँ पर again with the Ace of Cups कुछ रिश्ते नज़र आ रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, सुख वाले रिलेशन वो नहीं है ना। तो वो दोस्ती भी हो सकती है ऐसी जो दोस्ती के नाम पर एक धब्बा ही है, बट कुछ लोग हैं जिनको अब आप लेट गो कर देंगे, अपनी लाइफ से एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको इस बाउंड्री को जो है लांघने नहीं देंगे। हाँ, तो यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज, और आप अपने अंदर चीज़ें नहीं रख रहे हो। आपके जो मन की भड़ास है, देखिए इतना भी मैच्योर नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, इस मतलब ये मेरा मानना है। इतना भी मैच्योर मत बनो कि दूसरा तुमको कुचल कर निकल जाए। इतना भी मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं कि भाई बेचारे की होगी कुछ, है ना, होगी कुछ मजबूरी, इस वजह से ऐसा कह दिया उसने, ऐसा कर दिया उसने। इतना भी मैच्योर मत बनो। सो गाइडेंस यही है कि आज का समय वो नहीं है कि भाई एक थप्पड़ मारा किसी ने एक गाल पर तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ये वो समय नहीं है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इट्स लाइक ऐसा ज़िंदगी मर मर के जीना पड़ेगा, है ना। सो यू हैव टू डिसाइड हियर, एंड यू हैव डिसाइडेड। आपके हाथ में स्वॉर्ड यहाँ पर नज़र आ रही है। यू हैव डिसाइडेड कि भाई जो मेरी खुशी के आड़े आएगा, जो मेरे गोल के आड़े आएगा, मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा, मैं उसको हटा दूँगी या हटा दूँगा। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। खुद के भी इनफैक्ट अगर आपको लगता है ना मेरे खुद के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे वो लेजीनेस है, चाहे वो कुछ भी है, मेरा अच्छा रूटीन नहीं है, कुछ भी है ना, आप उन चीज़ों को हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, उनको कट कर रहे हैं, पियर्स कर रहे हैं अपनी जीवन से, और अपने गोल के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका एक जो एनर्जी है काली की, वो आपके अंदर आ रही है। हम सभी के अंदर एक काली है, चाहे वो मेल है, चाहे आप फीमेल हो, जो भी आप मेल फीमेल हो, व्हाटएवर द जेंडर इज़, हम सभी के अंदर वो काली बसती है। तभी हम नमस्ते करते हैं, हम एक दूसरे को, हमारे कल्चर में हम नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं कि आपके अंदर का जो भगवान है, यानी आपके अंदर की जो अच्छाई है, हम उसको नमस्ते करते हैं, हम उसको नमन करते हैं। तो वही चीज़, आपके अंदर जो अच्छाई है आप उसके लिए बहुत प्राउड हो, बट उस अच्छाई को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एनर्जी काली चाहिए वो भी आपके अंदर है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ऑफ द डेक में वी हैव द 4 of Wands. Literally this female is the, I would say, like the Shiv Shakti figure, this lady. Alright, so यहाँ पर कई चीज़ों का विनाश है और कई चीज़ों की स्थापना है, कई चीज़ों का ज़िंदगी में शुरू होना, और
कुछ चीज़ों का एंड होना, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज लिटरली अबाउट मैरिज कार्ड एज वेल. इट्स अबाउट सम सेलिब्रेशन, सम पार्टी, सम गेट टुगेदर, जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है. कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे नवरात्रि नाइट्स पीपल विल डांस एंड ऑल, है ना. वो एक रिलीजियस सेरेमनी भी है, साथ में वो फेस्टिव चीज़ है, वो बहुत मज़े का माहौल है ना. उन चीज़ों का आप अटेंड करेंगे. रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे. 4 ऑफ वॉन्ड्स इट डज शोज़ कि नेक्स्ट 1 मंथ में आप पार्टी सेलिब्रेशंस का पार्ट बनते हैं. मैं भी किसी का बर्थडे पार्टी ही सही, जाएंगे ज़रूर आप ऐसी चीज़ों में. सो ये नज़र आ रहा है. टेम्परेंस वर्क लाइफ बैलेंस को शो कर रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, अपने लिए भी समय है, फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए भी समय है, परिवार के लिए भी समय है, अपने गोल्स को अचीव करने के प्रति भी आप समय निकालते हैं ना. तो एक बैलेंस यहाँ पर भी नज़र आ रहा है. आप जहाँ पर भी आपका एनर्जी टाइम वेस्ट होता था, उस वेस्टेज को आप बंद कर पाते हैं, ये नज़र आ रहा है. देन वी हैव लिब्रा कार्ड हेयर. लिब्रा इज़ द, एंड आई सडनली just got a thought about केतु as well. मतलब नंबर 7 इज़ अबाउट केतु और यहाँ लीब्रा है, तो मे बी आपका 7th हाउस में केतु प्लेस्ड हो सकता है, लीब्रा साइन में केतु प्लेस्ड हो सकता है, या वीनस केतु कंजंक्शन हो सकता है, वीनस केतु ट्राइन में होगा एक दूसरे के 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होगा. और ये बहुत नॉर्मल सी बात भी है, क्योंकि आप जो जितनी भी फीमेल्स हैं, आप जो एस्ट्रोलॉजी टेरो में इंटरेस्ट रखती हैं, आप सभी का वीनस केतु का कॉम्बिनेशन होगा चार्ट में. या तो वीनस केतु जैसे मैंने कहा ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, या वीनस केतु कंजंक्ट हो सकते हैं, वीनस के 3रे या 11वें घर में केतु प्लेस्ड होगा, है ना. ये कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टेरो में इंटरेस्ट है, तभी आप इस फील्ड में आ पाए. सो आई माई सेल्फ हैव दिस कॉम्बिनेशन. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सेजिटेरियस साइन में वीनस है और पाइसीज़ में केतु है, तो ये साइंस जो है पाइसीज़ और सेजिटेरियस से जुपिटर रूल करता है ना. इन दोनों साइंस में या तो एक सेजिटेरियस में वीनस है और केतु पाइसीज़ में है ना, ऐसा भी हो सकता है. तो साइन वाइज भी हम काउंट करते हैं, वो भी प्लैनेट्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, तो ऐसी प्लेसमेंट होगी. बाकी ये लीब्रा अगेन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और केतु होता है डिटैचमेंट. ऑलराइट, केतु होता है डिटैचमेंट, बंधन से मुक्त करना केतु कराता है. इस वजह से केतु डिवोर्स का भी कारक है. वीनस केतु कॉम्बिनेशन डिवोर्स भी करा देता है इन सर्टेन केसेस, नॉट इन एवरी केस बट इन सर्टेन केसेस. सो ऐसे डर मत जाना. बाकी यहाँ लीब्रा यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं. यू आर नॉट हेयर टू टेक अदर पीपल्स बिहेवियर, जैसे हम शुरू में भी यही बात कर रहे थे. लीब्रा इज़ अबाउट पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या इन जनरल लाइफ पार्टनरशिप, जो कि मैरिज है, इन जनरल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है लीब्रा. लीब्रा इज़ अबाउट मार्केट प्लेस. भाई धंधा करने बैठे हैं मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को लूट ही लें, बट कुछ अपना हिस्सा भी रखेंगे, है ना. तो ऐसा एक बैलेंस बनाकर आप चलना चाहते हैं. टेम्परेंस इज अबाउट बैलेंस, लीब्रा इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस एज वी सी इट्स इज बैलेंस. तो लीब्रा इज अबाउट द स्केल्स. तो यहाँ पर आप स्केल्स को बैलेंस कर रहे हैं, यानी आप अपना फ़ायदा भी रख रहे हैं और दूसरे का भी नुकसान नहीं होने दे रहे हैं. आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी खुशी की चीज़ें भी कर रहे हैं, और जो चीज़ आपको पता है मेरे को खुशी नहीं देती पर मेरी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज़ करें. एक बैलेंस बनाकर चल रही है, यहाँ नज़र आ रहा है. और लीब्रा इज़ अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. मे बी यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इन द नेक्स्ट 1 month एंड इट इज़ गोइंग टू डू वेल. कहीं ना कहीं जो फेस्टिव सीज़न है आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है. मे बी आप लोगों का हो सकता है पहली बिज़नेस शुरू हो गया, जो कि कपड़ों से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, जेम्स से रिलेटेड है, क्योंकि लीब्रा इज़ रूल्ड बाय वीनस. वीनस जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, या लग्जरी आइटम्स है, या परफ्यूम्स है ना. तो इनसे रिलेटेड काम आप शुरू कर रहे हैं, तो ये जो नेक्स्ट 1 month होगा बहुत अच्छा जाएगा आपके काम के लिए दिख रहा है. बट इन जनरल कोई भी आप जैसे आई डू सी दैट मैनी ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो उसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगी. वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट, या लीब्रा इज़ ऑल्सो अबाउट सॉफ्टवेयर्स, इट्स अबाउट यूज़र इंटरफेस. तो इससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं हो सकते हैं, और उसमें आपको सक्सेस मिले, है ना. ये चीज़ नज़र आ रही है. आप में भी एक पार्टी और दूसरी पार्टी को मिला रहे हैं एक साथ, उनको कॉल करते हैं और उनको एक जगह पर बुलाते हैं. इस तरह का काम आप, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों का मीटिंग, है ना. ऐसे काम आप कर रहे हैं. केटरिंग से रिलेटेड, या जहाँ शादी ब्याह होते हैं तो उसके टेंट वगैरह लगते हैं, डेकोरेशन होता है, ये कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसमें आप बहुत अच्छा मनी आपके पास आ जाए.
कुछ क्रिएटिव आप ज़रूर करते हो नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, मॉनेटरी सक्सेस, नेम फेम मिलना, कुछ तो मिल ही रहा है। लियो साइन है, इट्स इज क्रिएटिविटी। सो या नेम फेम मिलना और कुछ क्रिएटिव अगेन आप करें। वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, ब्यूटी, डिज़ाइन, है ना, इससे रिलेट करना। जैसे हम डिजिटल चीज़ों में भी जाएं तो जैसे डिजिटल प्रिंट्स निकालना, शादियों के जो कार्ड्स होते हैं उसको डिज़ाइन करना, उसकी प्रिंटिंग कराना, है ना, इससे रिलेटेड काम आप कर रहे हैं। मतलब कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं और उससे बहुत अच्छा मनी भी अर्न कर पा रहे हैं। लियो यहाँ पर अगेन इट शोज़ कि आप बड़े रीगल रॉयल नज़र आ रहे हैं। आप भाई लोग आपसे 10 बार सोचते हैं बात करने से पहले, क्योंकि जिस तरीके से आप दिखते हैं, आप इंटेंस, आपकी एनर्जी दिख रही है इंटेंस, यानी कि आप बहुत रीगल रॉयल है। 10 बार सोचेगा कोई इंडिविजुअल आपसे बात करने के लिए और इज्जत से बात करेगा, क्योंकि लियो एक इज्जतदार साइन है, रॉयल साइन है, सन रूल करता है, किंगली साइन है। तो किंग से कैसे बात करते हैं, बड़े इज्जत से, रिस्पेक्ट से, है ना। तो वो रिस्पेक्ट आपको मिलना शुरू हो चुका है। पहले शायद आप खुद का ही रिस्पेक्ट नहीं करते थे, खुद के साथ ही ज़बरदस्ती करते थे। अब आपने अपने साथ ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया है और आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करते हैं। और अपने आप का ड्रेसिंग सेंस भी आपने इम्प्रूव करा है। आप अथॉरिटेरियन नज़र आ रहे हैं, माई वे और द हाईवे काइंड ऑफ पर्सन नज़र आ रहे हैं। मेरी चलेगी या मेरी ही चलेगी टाइप के पर्सन नज़र आ रहे हैं। आप जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे। लिब्रा इज़ अबाउट द इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, बट कहीं ना कहीं केतु का एलिमेंट है जो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने नहीं देगा। आप कहोगे आई डिज़र्व मोर, तो भाई मैं जब ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ तो मैं कम में क्यों काम करूँ, है ना। तो ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है और इस एनर्जी के थ्रू आप अपनी तरफ रॉयल क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं। बड़े बड़े लेवल के क्लाइंट्स, कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ वर्क करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क अब आपका आ रहा है, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क की तरफ आप जा रहे हैं और उससे आप बहुत अच्छा मनी अर्न करें, उससे आपको नेम फेम भी जो है मिल रहा है। एलीट क्लास के साथ आप बिजनेस करें, एलीट क्लास के साथ आप काम करें, पीपल हु आर वर्किंग हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन, उनके साथ आप काम कर रहे हैं। Then we have hope. And one more thing, like with the Ace of Cups, many of you may start leaker business. I don't know, I'm just saying things with the Ace of Cups. I feel Moon Saturn का combination है, Moon trine from Saturn बैठा है ना, या फिर Moon Saturn के आगे Moon है, तो ये लीकर बिजनेस में भी ले जाता है, इवन पेट्रोलियम से रिलेटेड बिजनेस में भी ले जाता है, अपना खुद का पेट्रोल पंप होना, ये भी। फिर होप कार्ड है, इट सेज होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। सो होप यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आप बहुत बहुत होपफुल हैं, आप बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी होप कोई आपसे लेकर नहीं जा सकता, आप बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव इंट्यूशन। सो इंट्यूशन यहाँ पर ये शो कर रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। अभी हम मून की बात कर रहे थे, है ना। मून इज़ अबाउट इंट्यूशन, मून इज़ अबाउट कि भाई आपका अंतर्मन क्या कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको सही गाइड कर पाता है, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर पाता है। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि ना, जैसे किसी दिन आपने दिन की शुरुआत ही थोड़ी गड़बड़ हो गई, शुरुआत जैसे आप सुबह उठे, है ना, आप अपना जो है आपने जैसे ही बेड से उतरे, आपने अपनी चप्पल पहनी, है ना, स्लीपर्स पहने, चलते चलते वो चप्पल टूट गई, इट्स अ साइन। और ऐसे करते करते मतलब 2-3 चीज़ें और सुबह सुबह गलत हो गया। रिमेंबर कि वो दिन की शुरुआत गलत है तो पूरा दिन कैसा जाएगा। कई बार हम अपने आप को ना पुश कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, मेरे को ये काम तो आज करके ही रहना है, करके ही रहना है। पर जब शुरुआत ऐसी हो ना, इंसान को सोचना चाहिए। इट्स नॉट कि भाई हम जो है दकियानूसी ख्याल के लोग हैं, ऐसा नहीं है। बट यू कैन आस्क एनीबॉडी कि जब आपके दिन की शुरुआत थोड़ी गलत हो जाए, 2-3 काम आपके सुबह सुबह बिगड़ जाए ना, दिस इज़ नॉट योर डे, दिस इज़ नॉट योर डे। तो उस दिन पर बेस्ट ये कि आप चुपचाप घर पे बैठ जाइए, बेस्ट यही है। बट अगर जैसे होता है कई बार हमें जाना ही पड़ता है बाहर, तो मैं तो कहती हूँ जुपिटर के हौरा में निकलिए, मार्स के हौरा में बिल्कुल मत निकलिए, जल्दबाजी में घर से बिल्कुल मत निकलिए, जुपिटर के हौरा में निकलिए। हौरा मीन्स आवर, हर आवर में हौरा बदलते, तो मार्स का हौरा, सैटर्न का हौरा,
और राहु काल, इनको आप अवॉइड कीजिए। जुपिटर के हौरा या फिर वीनस के हौरा में, स्पेसिफिकली वैसे तो जुपिटर के हौरा में निकलिए। मार्स के हौरा में निकलते तो एक्सीडेंट, सर्जरीज, पुलिस केस पड़ जाना, इन चीज़ों में आप आ सकते हैं। सैटर्न के हौरा में निकले तो ऐसा हो सकता है कि आपको इतनी भीड़ मिले आगे, रश इतना हो कि आपका काम डिले हो जाए, ट्रैफिक इतना मिल जाए। सैटर्न के हौरा में निकलेंगे तो अगर भीड़ नहीं भी है ना, फिर भी अननेसेसरी डिले हो जाएगा। तो सैटर्न के हौरा को भी अवॉइड करना चाहिए, जुपिटर के हौरा में निकलना चाहिए। और जब गड़बड़ हो ही जाए ना शुरुआत में ही, तो इंसान को रुक जाना चाहिए। द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू मैसेजेस बट यू आर स्टिल नॉट सीइंग इट, तो फिर हम क्या करें, है ना। आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइड करेगा, स्पेशली नेक्स्ट 1 मंथ आप बहुत इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन अकॉर्डिंग चलिए ज़रूर। यूनिवर्स आपको मैसेजेस देगा, उन मैसेजेस को देखिए, उसको ये मत सोचिए कि भाई मैं तो दकियानूसी ख्याल के हो गया, पुराने ख्याल के, ऐसा नहीं है। द यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू मैसेजेस, यू आर द वन हु इग्नोर इट। ऑलराइट, देन वी हैव ग्रोथ। इट सेज ग्रोथ इज अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप, ट्रस्ट द प्रोसेस। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए गाइडेंस है। हो सकता है कि पहले दूसरे दिन आपको कुछ खास तरक्की ना दिखे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दिन बाद आपके लिए प्रोग्रेस आए। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ऑलराइट, ट्रस्ट द जर्नी यू आर ऑन, ट्रस्ट द जर्नी यू आर इन, ऑलराइट। एंड ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। वी सी बटरफ्लाइज हेयर, वी सी बटरफ्लाइज हेयर, वी सी बटरफ्लाइज हेयर एज वेल। 3 कार्ड से बटरफ्लाई आया है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट शोज दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ योर ककून, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल्फ। फाइनली आप अपना रियल सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ दूसरों को दिखा पा रहे हो, और विदाउट एनी जजमेंट। मतलब यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, यू वांट कि मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी स्किन में, अपने काम में, आई शुड बी कंफर्टेबल। मेरा फिजिकल अपीयरेंस या मेरी ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करता है मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स द मोस्ट। या जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ, जो मैं दुनिया को दे रही हूँ, देखने लायक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाला काम होना चाहिए। तो आप इस क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस एज सच बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं है या पीपल प्लीजिंग पर नहीं है। काम भाई बेस्ट से बेस्ट करना है, ये कहीं ना कहीं आपका फोकस है, और ये आप कर पाएंगे। काम आप बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और कुछ आप बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, चीज़ आप अचीव कर रहे हैं बिजनेस में सक्सेस, आप ये चीज़ें अगेन अचीव करेंगे बिफोर दिस ईयर्स दिवाली। यहाँ पर कुछ और चीज़ें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। वी हैव स्टेप कार्ड, we have 2 cards. We have step card. It says don't be afraid to move and change. So ये भी आपके लिए guidance है। पाइल नंबर 2, don't be afraid of transformation, don't be afraid of change. This change is required in this time. So अगर आप जॉब से बिजनेस में जाना चाहते थे, आप अपने जॉब में ही, अपने करियर में ही बदलाव चाहते थे, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि डॉक्टर वाली पढ़ाई करी है, डॉक्टर है तो सडनली आप इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट अपने ही फील्ड में कुछ डिफरेंस आप ला सकते हैं। मे बी यू आर इन डूइंग योर MBBS, और यू हैव कंप्लीटेड योर MBBS एंड यू आर थिंकिंग दैट मे बी आई शुड गो इनटू गायनेकोलॉजी, बट नाउ यू हैव रियलाइज नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू गायनेकोलॉजी, आई वांट टू गो इनटू डर्मेटोलॉजी। सो मे बी यू आर चेंजिंग दैट। मे बी इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन लॉ एंड आप किसी तरीके का लॉ परस्यू कर रहे हैं, लॉ में भी बहुत सारी फील्ड्स है, तो मे बी यू वांट गो इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉ। अगर आप जैसे IT सेक्टर में हैं, आप जो है कुछ एनालिसिस से रिलेटेड काम करते हैं, अब आप यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, मतलब कुछ बदलाव अपने ही सेम कंपनी में एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, डिफरेंट वर्क आप चाहते हैं, उसके प्रति आप एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप वो शिफ्ट, वो चेंज अपने करियर में ले आएंगे। सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है। देन वी हैव रिवील, इट सेज एक्सप्रेस द रियल यू ट्रूली। या वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली फॉर द past few minutes. We are talking about this only. Reveal card here shows that you will be able to express your true self. You will be able to express your self. जो आप सच में हैं वो आप दुनिया को दिखा पाएंगे. You're not doing people pleasing. You're just focusing towards who you are and who you want to become, and you don't care what other people are going to think about you. आपके अंदर बहुत courage आता हुआ नज़र आ रहा है. सो दैट्स वंडरफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर ओके 2 कार्ड्स आ गए अभी, डोंट वरी, पहले भी मैंने शफल करे हैं. सो वी हैव ब्लिस्ड आउट एंड वी हैव अबंडेंस. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं. ये थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है, एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं. वी हैव टाइडी अप.
ऑल राइट, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटते हो और आप कहते हो कि मैं अब एक जर्नी पर निकली हूँ, एक नई जर्नी पर निकली हूँ और मुझे इसके अंदर सक्सेस चाहिए ही चाहिए। इस नई जर्नी में मेरे को सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। और इस चीज़ में आपको अबंडेंस सक्सेस ज़रूर मिलेगी, विद इन 30 डेज मिलेगी। स्पेशली पीपल विल लव व्हाट यू आर डूइंग, पीपल विल cheer up for you and you're gonna feel blessed, you're literally gonna feel blessed, you're gonna feel काश ये मैंने पहले ही कर लिया होता, काश ये करेज मैंने पहले ही दिखा दिया होता। बट वही है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। कई बार बुद्धि थोड़ा लेट चलती है पर एटलीस्ट चल तो रही है ना, तो ये बहुत बढ़िया बात है। सो याद वॉज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल 2। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हाँ, लीब्रा का साइन हो गया, लियो का साइन हो गया, एरीज का भी साइन आई फील प्रोमिनेंट है, नहीं इस साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। इवन आई वुड से कि जो वर्गो साइन है ये भी प्रोमिनेंट है, इसमें भी प्लांट्स प्लेस होंगे। तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हास्ता चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति विशाखा, विशाखा इवन स्कॉर्पियो साइन सीन्स टू बी प्रोमिनेंट। स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। तो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1 D12 D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। और मार्स मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है, मार्स मर्करी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में, जो कि अगेन आपकी स्पीच को पावरफुल बनाते हैं, जो कि अगेन आपको एक इन्फ्लुएंसर भी बना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बनने का कॉम्बिनेशन है मार्स मर्करी कंजंक्शन या मार्स मर्करी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, राइट। एंड आई डू सी कि कहीं ना कहीं सन से 10th हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हो सकता है, तो या फिर सन 10th लॉर्ड फ्रॉम सन कैन बी इन एन एग्जॉल्टेड पोजिशन इन द बर्थ चार्ट इट सेल्फ, विच शोज दैट योर पैशन इज गोना बिकम योर प्रोफेशन। सो ये चीज़ यहाँ पर है। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। जैसे अगर सन 5th हाउस में है ना, वर्गो राइजिंग ये इंडिविजुअल है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वर्गो राइजिंग कोई इंडिविजुअल है, उसका सन 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न में है, तो सन से 10th कौन सा साइन होगा? सन से 10th होगा आपका सन से 10th होगा, अरे मेरे को ही नहीं याद आ रहा है, सन से ओके 7th 8th 9th 10th, हाँ सन से 10th सेकंड हाउस हुआ। सेकंड हाउस में कौन सी राशि होगी? लीब्रा की होगी। अगर वीनस एक्सॉल्टेड हुआ आपके चार्ट में तो यानी सन से 10th हाउस सन से 10th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, यानी इस इंडिविजुअल का पैशन इज गोना बिकम द प्रोफेशन। ऑलरेडी ऐसे सन से 10th या फिर सेकेंड हाउस में उसका कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट, मतलब वीनस सेकेंड हाउस में एक्सॉल्टेड है या वीनस कहीं पर भी एक्सॉल्टेड है, ऐसे इंडिविजुअल के लिए उसका पैशन उसका प्रोफेशन बनेगा। दिस विल हैपन। तो उसी तरह आपका भी सन से 10th हाउस में, सन से 10th लॉर्ड एक्सॉल्टेड पोजीशन में हो सकता है, कहीं पर चार्ट में उच्च का हो सकता है, तो उच्च की पोजीशन दे देगा, बेटर पोजीशन दे देगा। All right, so that was pretty much it. This was the reading for you, pile number 2. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Even जैसे सन हो गया, वीनस हो गया, या फिर मरकरी हो गया, मार्स हो गया, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू इज इट कैन बी सन, इट कैन बी मार्स, इट कैन बी वीनस और इट कैन बी मरकरी। इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकार का होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees. So yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the divinity card. It says every moment is filled with divinity, cherish it. और you picked this file because आपका birthday जो है वो 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve before this year's Diwali? Pile 3. एक बात तो क्लियर है, इस बार का फेस्टिव सीज़न नवरात्रों से लेकर दिवाली तक, दिवाली से चाहे वो भाई दूज है या जो आगे भी त्यौहार आएंगे, आप उन्हें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, चाहे वो क्रिसमस ही क्यों ना हो,
रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन आप हर इस बार फेस्टिवल को इन्जॉय करेंगे। दशहरा है, नवरात्रि है, ऑब्वियसली दिवाली है, आप हर चीज़ को बहुत दिल से सेलिब्रेट करेंगे। और काफ़ी सारे लोग आप में से काफ़ी भक्ति पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस डिविनिटी कार्ड। सो लेट्स सी क्या चीज़ आप कंप्लीट करें, क्या चीज़ आप अचीव करें बिफोर दिस ईयर्स दिवाली। सो हैव लवर्स कार्ड, ओके। एम्ब्रेस ट्रू लव, डीप love and deep intimate friendships, make choices from the heart, vibrant health or recovery from an illness. Wonderful. पहला ही कार्ड मेजर आर्काना का है, तो यही शो करता है गुड हेल्थ आप अचीव कर रहे हैं। मे बी यू वर रियली फोकसिंग टूवर्ड योर हेल्थ, फिटनेस ऑफ द बॉडी, और जो वैसे भी अभी का जो समय है, पिछला एक महीना और अगले 20 दिन भी आप लगा लीजिए, 20-25 दिन जो है जुपिटर राहु डिग्रीकली क्लोज है एक दूसरे से, ट्राइन में बैठे डिग्रीकली क्लोज है ट्रांजिट में, जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड इलनेसेस लेकर आएंगे। रेस्पिरेशन यानी कफ एंड कोल्ड हो सकता है, वायरल हो सकता है, सिंपली अगर कहें तो ये हो सकता है। या फिर अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को पहले से ही आस्थमा का इशू है, एलर्जी का इशू है कि भाई एलर्जी होती है तो भाई स्नीजिंग होती है, वाटरी आइज है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना, ये चीज़ ज़्यादा होंगी इस समय पर। पिछला एक महीना और अगले भी अभी 25 दिन हम कह सकते हैं कि थोड़े ऐसे 20-25 दिन और ऐसे रहेंगे। और आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि वही वायरल से लोग डाउन हो रहे हैं, तो है। अब आप कह सकते हैं कि भाई बारिश हुई है तो इस कारण भी वायरल फैला है, वट एवर इट इज़, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं, 1 ईयर पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें। जुपिटर जब भी राहु के करीब आता है, और हर साल होता है, कोई एक बिल्कुल अलग फिनोमेना नहीं है, अलग चीज़ नहीं है, ये हर साल होता है कि जुपिटर राहु के ट्राइन में आ जाता है। तो उन महीनों में वही कफ कोल्ड का इशू, रेस्पिरेशन से डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होना, वही वायरल होना, ये चीज़ें होती है। तो मे बी यू हैव डेल्ट विद दिस, और मे बी यू हैव नाउ फाउंड कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ. So now you're taking good care of yourself. You again want to come back with lot of strength. All right. So ये यहाँ पर फोकस नज़र आ रहा है, हेल्थ कहीं ना कहीं फोकस नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप ज़्यादा बेटर फॉर्म के साथ वापस आएंगे, ये नज़र आ रहा है। और इफ़ यू वांटेड टू गेन वेट, इफ़ यू वांटेड टू लूज़ वेट, है ना, तो आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं फाइनली। और लवर्स यही शो करे कि कोई हेल्थ इशू से आपने डील करा था और बड़ा ही उस हेल्थ इशू ने तंग करा, तो फाइनली आपको राइट मेडिसिन मिलती है और आप खुद भी अपने एफर्ट करते हैं फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए कुछ, और उन एफर्ट्स की वजह से, उन मेडिसिन की वजह से आप काफ़ी फिट एंड फाइन हो जाते हैं नेक्स्ट 1 मंथ में। ये यहाँ पर शो रहा है। लवर्स ये अगेन शो करता है मैनी ऑफ यू कैन लिटरली मीट योर लाइफ पार्टनर इन द नेक्स्ट 1 मंथ इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। तो if you wanted to get married, you wanted to meet your life partner, you wanted to be in a romantic relationship, so you can definitely find someone in the next 30 days. And maybe this person is approaching you, you're not approaching this person is coming into your life, approaching you first, and then things start to move forward. आपको वैसे ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं नज़र आ रहा है। ये लवर्स कार्ड ये शो कर रहा है that your partner is going to approach you, and that's how you guys come in contact, that's how you guys come to that's how you guys will start to talk to each other. Your partner is approaching you. So ये नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ में भी you guys were husband and wife, and इस लाइफ टाइम में भी आप लोग husband and wife बनोगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। Many of you can have Venus Mars conjunction है, Venus can be trine from your Mars, जो कि लव मैरिज का सिग्निफिकेशन है, या वीनस के आगे मार्स है, वीनस के पीछे मार्स है, तब भी ये लव मैरिज को सिग्निफाई करता है। पास्ट लाइफ के स्पाउस से मैरिज होगा, क्योंकि वीनस वाइफ है, मार्स हस्बैंड है, वीनस फेमिनिन एनर्जी है, मार्स मैस्कुलिन एनर्जी है। तो इवन इफ़ यू गाइज आर गेज और लेस्बियंस, तो भी ये चीज़ आपकी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो मैस्कुलिन होगा लिटिल बिट इन द रिलेशनशिप, या कोई ना कोई तो फेमिनिन होगा लिटिल बिट इन द रिलेशनशिप, है ना। तो उससे भी हम देख सकते हैं वीनस फेमिनिन एनर्जी, मार्स मैस्कुलिन एनर्जी, तो इन दोनों का मेल कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। कहीं ना कहीं शिव शक्ति की आप पूजा करने लग जाए, दिस कैन इवन हैपन। शिव मंदिर आप जाना शुरू कर दे, दिस कैन इवन हैपन। आपको विजिट करने का मौका मिल सकता है ऐसी जगह, है ना। तो ये नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन तो यू आर ऑफ कोर्स गोइंग टू द चर्च, आपके रिलीजन अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं। बाकी शिव शक्ति से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे हैं। और लवर्स अगेन इट शोज़ मी के यू आर मीटिंग द पर्सन
the love of your life. Or if you're already in a romantic relationship, if you're already married, then your relationship with your life partner tremendously improves. You guys seem to have a very good relationship with each other. Fights, arguments इतनी नहीं हो रही है. किन्हीं जो फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स जिन चीज़ों पर आप लोग का होता है ना, उन चीज़ों पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, वो फाइट्स आर्गूमेंट्स ना हो, रिजॉल्व करते हैं उन फाइट्स आर्गूमेंट्स से, आर्गूमेंट्स को बात करते हैं एक दूसरे से. कम्युनिकेशन इज़ रियली द की टू रिलेशनशिप. फाइल नंबर 3. तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स को, एंड दैट्स हाउ यू गाइज ऑल्सो अगेन कम क्लोजर टू ईच अदर. ये भी यहाँ नज़र आ रहा है. Then we have Knight of Wands. It says passion, confidence, confident, charismatic, restless, events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship. So yeah, आपका एक पैशनेट रिलेशनशिप इस इंडिविजुअल के साथ नज़र आ रहा है. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज मी विद द लवर्स कार्ड कि किन्हीं चीज़ों को लेकर आप बहुत ड्रिवन है, आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है किसी चीज़ को लेकर, आप अपने करियर को लेकर बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं. आप मैनी ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस एज वेल. आई सी दिस. मे बी आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, मे बी आप अपने स्पाउस के साथ कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मे बी आप कल्ले कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसके प्रति बहुत ड्रिवन है, उसके प्रति आप बहुत पैशनेट हैं और बड़ा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं. और नेक्स्ट 1 मंथ में बिफोर दिस ईयर्स दिवाली आप उसमें कुछ अच्छा अमाउंट अचीव कर लेते हैं, अच्छा मनी आपको मिल जाता है. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. ड्रिवन है, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है उस चीज़ के बारे में. तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेहनत आपको लग नहीं रही कि मैं मेहनत कोई कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आप इतना मतलब उस चीज़ में खोए हुए हैं, इतना पैशनेट है, इतना फायरी एनर्जी, फायर एलिमेंट आपका नज़र आ रहा है. ऐसी आग जो प्रॉब्लम्स को जला देगी और आपको जो है लाइमलाइट में लेकर आ जाएगी. सो ये यहाँ नज़र आ रहा है. देन वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स इट इज़ शोइंग मी कि जोश में होश नहीं खो बैठते, प्लान स्ट्रैटेजाइज डेफिनेटली करते हो, अपना होमवर्क पूरा करते हो, अपना जो है रिसर्च एनालिसिस पूरा करते हो और उसके बाद ही ऑफ कोर्स आप फॉरवर्ड मूव करते हो, आगे तेज़ भागते हो. इट सेज लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन बट देन गेट गोइंग. तो यहाँ पर भी वही है कि आप प्लान केयरफुली कर रहे हो अपने एक्शंस को एंड देन यू आर गेट गोइंग, मतलब क्विकली फिर आप उस चीज़ को अचीव करने में लग जाते हो. पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, अ गार्डियन एंजल और someone who watches over you. So there is some divine energy which is helping you in this project. Maybe you're going to see, or maybe you're going to see other people जो आपके सेम बिजनेस फील्ड में ही हैं, आप ही के बिजनेस फील्ड में हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं शायद. आप देखते हैं कि इन लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ में बड़ी मुश्किल आ रही है, whereas आप उस पर्टिकुलर चीज़ से बड़ा ईजिली आगे बढ़ गए, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज देर इज सम गाइडेंस, देर इज सम एंजल, देर इज सम डिवाइन हेल्प विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. जुपिटर 6th हाउस में हो सकता है पाइल नंबर 3 आपका, जो कि ये शो करता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी जीवन में, पर देर विल ऑलवेज बी दिस डिवाइन हेल्प. ऑलवेज भगवान का हाथ साथ या उस ईश्वर का या यूनिवर्स का हाथ और साथ ज़रूर है, जिस कारण आप उस चीज़ को पार करके चले जाते हो, उस प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल को पार करके चले जाते हैं. 6th हाउस वही है, रोग ऋण शत्रुओं का है, हेल्थ इश्यूज़ का है, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स का है, एनिमीज़ का है. उनसे आप जीत कर आगे निकल जाते हैं. तो आपका हेल्थ भी आपके काम के आड़े नहीं आएगा और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे और कुछ अचीव करेंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज़ अपने काम में ही, अपने करियर में ही. ऑलराइट. और बहुत डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है. देन वी हैव द 8 ऑफ पेनिकल्स. वंडरफुल. एज ऑफ टोल्ड यू कि यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं. समवन इज देयर विद यू हु इज हेल्पिंग यू आउट इन योर करियर. मे बी इट कैन बी योर ब्रदर, इट कैन बी योर सिस्टर एज वेल. देयर गोना बी पीपल अराउंड यू हु आर गोना हेल्प यू आउट. सो दैट्स वंडरफुल. आप अकेले नहीं हो पाइल 3. आप अपने आप को अकेला मत समझिए. ये मदद जो है शायद सच में कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है, या फिर देयर इज God, there is universe who is helping you out in every step somehow somewhere, and you're going to feel like कि भाई मैं तो इस फील्ड के लिए बनी हूँ मैं कहीं और ही मतलब अपना एफर्ट डाल रही थी और कह रही थी या कह रहा था कि भाई मेरे को इसमें सक्सेस नहीं मिल रही, एंड फाइनली आई गॉट टू द करियर जिसमें मुझे बहुत ईजिली सक्सेस मिल रहा है, मेरे को बहुत ईजिली मैं फॉरवर्ड मूव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बिकॉज यू आर मेंट फॉर दिस वर्क. इन द नेक्स्ट 30 days you are going to realize, oh, I am meant for this kind of work, not that kind of work. And when you start to work on the thing, many of you I'm seeing that you're starting your own business, or maybe you're changing your job profile.
ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डॉक्टर थे तो अब आप इंजीनियर बन जाओगे 1 महीने में, ऐसा तो नहीं है। बट अगर आप डॉक्टर फील्ड में भी हो, यही मैंने एग्जांपल एक्चुअली पाइल 1 में भी दिया, पाइल 2 में भी दिया, और पाइल 3 में भी कुछ चेंज ऑफ करियर नज़र आ रहा है। सेम चीज़, सेम एनर्जीज नज़र आ रही है कि अगर जैसे आप एक डॉक्टर हो, आप MBBS स्टूडेंट हो या आपने कर लिया MBBS, पहले आप सोच रहे थे मैं गायनी में जाऊँगा या जाऊँगी, नाउ यू आर थिंकिंग कि नहीं, आई डोंट वांट टू रियली गो इनटू गायनी, आई वांट टू गो इनटू न्यूरो साइंस, और आई वांट टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट या व्हाटएवर, यू नो, आप एक नई फील्ड में एंटर कर जाते हो। आप एक लॉयर हो, आप किसी मतलब लॉ भी डिफरेंट तरीके की है, उसमें भी बहुत डिफरेंट फील्ड्स आते हैं, स्पेशलाइजेशंस डिफरेंट हो जाती है। आप जिस लॉ फील्ड में थे, आप कहते हो कि नहीं, मेरे को आई डोंट वांट टू वर्क हेयर, आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी लॉ, है ना, उसमें मेरे को मेरा फ्यूचर दिख रहा है। तो कुछ शिफ्ट आप अपने करियर में लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली करियर को बदले, कुछ आप में से लोग होंगे जो कम्प्लीटली अपने करियर को शिफ्ट करेंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने करियर में ही थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में जाएंगे। इफ़ यू आर समवन जो टेरो करते हो, तो इन द नेक्स्ट 1 month मे बी यू स्टार्ट टू लर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मे बी यू स्टार्ट टू लर्न अबाउट BNN, भृगु नंदी नाड़ी, और यू स्टार्ट टू लर्न अबाउट द एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, मे बी यू स्टार्ट टू लर्न अबाउट रेकी। मतलब कुछ ना कुछ उसी फील्ड में कुछ डिफरेंट आप सीखें, कुछ डिफरेंट आप करें। जैसे सिग्नेचर डिज़ाइनिंग हो गया, जैसे आपका लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आप कर रहे हैं, है ना, या आप मतलब समथिंग यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इन योर करियर। कंप्लीट चेंज भी आ सकता है। मे बी आप एक इंजीनियर थे और उसके बाद यू हैव स्टार्टेड योर ओन ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस, जेम्स रिलेटेड बिजनेस, क्लोथिंग रिलेटेड बिजनेस, कुछ लग्जरी आइटम्स से, टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस, बिकॉज वी हैव लवर्स एज वेल, विच इज़ बेसिकली वीनस जो है वो वही है, जेम्स है, ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, टेक्सटाइल है, लग्जरी प्रोडक्ट्स है, परफ्यूम्स है, फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड काम, है ना। तो ऐसा आप करते हो नजर आए। मे बी यू आर मीटिंग मैनी फीमेल्स इन द नेक्स्ट 1 month, वो आपकी क्लाइंट्स हो, आपके कस्टमर हो, उनसे आप डील करें, दिस कैन हैपन, है ना। दिल लगाकर बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेस आपको मिल रहा है, बट देर इज़ सम चेंज, देर इज़ सम शिफ्ट इन द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करियर। सो ये नज़र आ रहा है। समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट कि भाई क्या चीज़ पाइल नंबर 3 अचीव करें, फाइनली यू आर एबल टू स्टेप इन टू अ डिफरेंट करियर, ऐसी ये तो है ही, और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, और रियली हैप्पी अबाउट इट। देन वी हैव Pisces, इंट्यूशन। सो Pisces यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके मन, अंतर मन की आवाज़ आप सुनते हैं और उस अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हैं इन द नेक्स्ट 1 month, और इससे आपको बहुत सक्सेस मिलती है। आपको अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, आपको अपने अंतर मन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपको सही गाइड करेगा। Pisces अगेन यही शो करता है, आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टेरो, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल प्लेसेस, मेडिटेशन, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मे बी यू आर गेटिंग अ रीडिंग देन इन द नेक्स्ट 1 month विद फ्रॉम मी or from some other astrologer or tarot card reader, and you're enjoying it. Maybe you're also learning these things in the next 1 month, और इससे आप खुद मनी भी अर्न करना शुरू कर दे, this can happen. Then we have North Node, it says fulfillment. North Node is basically Rahu, and I think कि हाँ, yes, और फाइल नंबर 1 में भी जो है राहु आया था, ये वाला डेविल का कार्ड आया था, जो कि राहु एलिमेंट है। सो यहाँ पर भी राहु आ गया पाइल नंबर 3 आपके लिए। मे बी यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1, ये वाला पाइल नंबर 1 का कार्ड था, यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दिस। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, बिकॉज उसके अंदर भी आपके लिए जो है गाइडेंस होगी, उससे भी आप रेजोनेट कर पाएंगे। सो यस, पाइल 3 आपके लिए जैसे नॉर्थ नोड अगेन आया, फुलफिलमेंट, यही शो करता है कि आपके जो मटीरियलिस्टिक होप्स, विशेस, डिज़ायर्स थे, वो फाइनली अब फुलफिल आप कर पा रहे हैं। राहु इज़ मटीरियलिज्म ना, इस वजह से आप कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक गोल्स, होप्स, विशेस, डिज़ायर्स को पूरा कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, मनी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। Many of you may even buy gold and silver in the next 1 month. मैं तो कितने ही टाइम से बोली जा रही हूँ एक ही बात, आई थिंक इस साल की शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि भाई गोल्ड ले लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत बढ़ने वाला है। आई वाज सेइंग कि दिवाली पे 110 हो जाएगा, और 110 ऑलरेडी हो चुका है गोल्ड का प्राइस, तो 110 तो कहीं भी नहीं गया, उससे भी आगे बढ़ने वाला है। 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में 2 लाख क्रॉस कर जाएगा गोल्ड, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सिल्वर बढ़ेगा, और इसमें आप लॉजिक भी अपना यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भारत में चीज़ें बनेंगी, तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ़ोन्स वगैरह, उसमें भी सिल्वर यूज़ होता है, तो सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और घटेगा नहीं अब। तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर फील कि भाई गोल्ड तो अब इतना महंगा हो गया, तो बट आई विल स्टिल से 110 महंगा नहीं है, 2 लाख से तो महंगा ऑब्वियसली 110 नहीं है, तो इट्स नॉट अ बैड प्राइस टू बी ऑनेस्ट। सो
इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। मार्स अगर सेकंड हाउस में है तो आप रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए। जुपिटर सेकंड हाउस में है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। मून सेकंड हाउस में है तो सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। बट आज की डेट तो ऐसी है, चार्ट देखो या ना देखो, ये चीज़ों ने ग्रो करना है। गोल्ड सिल्वर ने तो ग्रो करना ही करना है, करना ही करना है। प्रॉपर्टी भी ग्रो करेगी, बट जितनी जल्दी गोल्ड और सिल्वर ग्रो करेगा उतना जल्दी तो शायद उसमें प्रॉपर्टी में बूम इतना नहीं आता हुआ नज़र आ रहा। बढ़ेगी प्रॉपर्टी नो डाउट, बट गोल्ड सिल्वर वो तो जाएंगे अब। और काफ़ी अच्छा, मतलब उसमें अगर मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा मनी आपको रिटर्न उसका अच्छा आएगा। सो दैट्स देयर। मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स आप अपनी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैनी ऑफ यू में इवन बाय अ कार इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ये प्रिडिक्शन इस मंथ की वही हॉरोस्कोप में भी थी फॉर सम पाइल। मंथली जो प्रिडिक्शन थी कि भाई आप गाड़ी लेंगे, आपके परिवार में कोई गाड़ी ले सकता है ना। तो ऊपर से वो जीएसटी के रेट्स कम हो गए तो गाड़ी ले पाएंगे आप, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ मटीरियलिस्टिक गोल्स आप अपने पूरे ज़रूर कर रहे हैं, अचीव ज़रूर कर रहे हैं, कंप्लीट ज़रूर कर रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। और अगर आप कोई महंगा बैग लेना चाहते थे, आप कोई महंगी चीज़, लग्जरी चीज़ लेना चाहते तो फाइनली यू आर एबल टू बाय इट इन द नेक्स्ट 30 डेज। वो कुछ भी हो सकता है, लग्जरी चीज़, वो बैग है, वो मेकअप का चीज़ है, कुछ भी, कोई लग्जरी चीज़ आप लेते हो नज़र आ रहा है बिफोर दिस ईयर्स दिवाली। एंड वी हैव ब्लेसिंग्स। इट सेज ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। सो यूनिवर्स जो है आपको ब्लेस कर रहा है, ईश्वर से जो है ब्लेसिंग आ रही है। जुपिटर कहीं ना कहीं यानी कि 6th हाउस में है। मैनी ऑफ यू हैव जुपिटर इन द 6th हाउस, विच शोज़ की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। जुपिटर अगर 5th हाउस 9th हाउस असेंडेंट में है तब भी भगवान की ब्लेसिंग्स या ईश्वर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, हाथ और साथ बना रहेगा। Then we have light. It says light dispels darkness, keep your inner light shining. तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पाइसी साइन तो आया ही हुआ जो कि अंतर मन के बारे में है, आपके सबकॉन्शियस के बारे में, आपके स्लीप रेस्ट के बारे में। तो ये स्लीप रेस्ट आपका इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। मेडिटेशन में आपका ध्यान है। जैसे दिवाली पर हम दिया जलाते तो अपना अंतर मन का जो दिया है, बेसिकली हमारी जो आत्मा है वो भी दिए जैसी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको भी जो है प्रकाशित करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने आप को भगवान से, परमात्मा से आप जोड़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी जागती ज्योति को और जगाते हैं। ऑलराइट, सो ये अपने अंदर से नेक्स्ट 1 मंथ में आपकी जो कमी कमज़ोरी थी, अगर आप सोचते थे भाई मैं बहुत लेज़ी हूँ, या मेरा रूटीन अच्छा नहीं है, या मुझ में ये कमी है, अगर ये कमी ना हो तो मैं ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस कर जाऊँ, है ना, उन कमियों पर आप वर्क करते हैं, अपने आप का बेटर वर्जन आप बनते हैं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपने करियर में आप अपना समय बहुत गुजारते हैं, अपने करियर को आप बिल्ड करते हैं। देन वी हैव इनसाइट। इट सेज इनसाइट इज द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। तो नेक्स्ट 1 मंथ में आप ये भी देखेंगे कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है। हम जुपिटर की बात कर रहे थे, 6th हाउस में हो सकता है, 5th हाउस, 9th हाउस, 1st हाउस में हो सकता है जुपिटर। जुपिटर खुद ज्ञान का कारक है। जुपिटर पाइसिस को रूल करता है। जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में, या जुपिटर के आगे राहु हो सकता है आपके चार्ट में, विच शोज कि भाई यू आर समवन हु इज अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर। आपके गुरुज मेंटोर्स आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं होंगे, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स के होंगे आपके गुरुज मेंटोर्स। और आप यही शो करता है कि आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, और आप काफ़ी नॉलेजफुल नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 1 मंथ में आप नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बुक्स भी पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉडकास्ट सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, रिसर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फील्ड के बारे में, इवन गॉड, यूनिवर्स, है ना, आत्मा परमात्मा के बारे में भी आप नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। गिविंग फूड टू योर सोल, ऐसा नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फ्लो कार्ड। सो फ्लो कार्ड हेयर शोज़ में कि चीज़ें एक फ्लो में होंगी, जोर नहीं लगेगा आपका। अगर आप सोचते हैं ना कि इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ तो मैं थक ही जाऊँगी नेक्स्ट 1 मंथ में, ऐसा नहीं है। जब उमंग उत्साह साथ होता है तो थकावट छू मंतर हो जाती है, क्योंकि इतना उमंग उत्साह है कि थकते आप हो ही नहीं, आप रिचार्ज फील करते हो जितना आप काम करते हो अपने पैशन की तरफ। फ्लो कार्ड यही शो करता है कि चीज़ें एक फ्लो में चलेगी, ऐसे रुकावटें नहीं होगी, आप रिजिड नहीं नज़र आ रहे, आप काफ़ी गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा एक फ्लो में चलेगी चीज़ें, रुकावटें नहीं होंगी। देन वी हैव एक्सप्लोर कार्ड। एक्सप्लोर यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप अननोन टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहे हैं,
अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि दूसरे लोगों को किन्हीं चीज़ में रुकावट आती है, बट आप देखेंगे कि आपको उन चीज़ों में रुकावट नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो आप ही के फील्ड में उनको उस पर्टिकुलर चीज़ में रुकावट आ रही है, आपको नहीं आएगी। और आप कुछ अनएक्सप्लोर टेरिटरी में जा रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको जी रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो कई नई चीज़ें आप सीखेंगे, कई नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, लेकर आएंगे। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द इंस्पिरेशन कार्ड। सो या दिस इंस्पिरेशन कार्ड डज शोज कि आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं और लोग आपको लुक अप टू करते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मे बी और दैट पर्सन इज गोइंग फ्रॉम 0 to 100, 0 to infinity. पीपल आर सीइंग दैट यू आर ग्रोइंग सो क्विकली इन द नेक्स्ट 1 मंथ। लोगों को आपकी सक्सेस दिखेगी और कोई आपको नज़र नहीं लगा पाएगा, आप ग्रो कर पाएंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। और आप कहीं ना कहीं दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। ऑल राइट, सो कई बार ना आपको मुंह से दूसरों को मोटिवेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आपके कर्म ही काफ़ी होते हैं। जैसे ब्रह्मा के चरित्र गाए जाते हैं, कैरेक्टर गाए जाते हैं, ऐसा कि ब्रह्मा फॉलो फादर करो, ब्रह्मा जैसा बनो, है ना, उनके चरित्र गाए जाते हैं। तो उसी तरह आप भी चरित्रवान नज़र आ रहे हैं, आपका भी एक कैरेक्टर है जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं, आपका भी एक वर्क एथिक है जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं, और आप जैसा बनना चाहते हैं। आप उनको कोई 1 घंटा ऐसा सुना नहीं रहे हो कोई मोटिवेशनल स्पीच, बट आपके कर्मों से लोग देख रहे हैं कि भाई आप कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, उससे ही वो मोटिवेट हो जाते हैं। सो कितनी वंडरफुल बात है कि आप सिंपल है बट सैम्पल बनते हैं दूसरों के लिए। सिंप्लिसिटी से काम कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी है। सिंपल बात है, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, ऑर्गेनाइज रहो, चीज़ें टाइम पर करो, सिंपल बातें हैं ये सारी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट लोग आपको देखते तो उनको और ऐसा होता है कि हाँ भाई, एक सीधे रास्ते पर चलना कितना अच्छा है और कितना क्विकली हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब हम जिगजैग जा रहे होते हैं अपने गोल की तरफ, हम इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितनी टाइम लेकर, कितना एफर्ट लेकर फिर हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। बट पीपल आर सीइंग कि आपका एक गोल है, एक विजन है, और उस प्रति आप बस सीधा सीधा चल रहे हैं, आपका इधर उधर ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्ट आप नहीं हो रहे हैं। सो ये बड़ी वंडरफुल बात है। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 3। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जो आपका राहु है वो असेंडेंट में हो सकता है, राहु जुपिटर का कंजंक्शन मैंने बताया, राहु जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, पाइसेस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, टॉरस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, जेमिनाई हो गया, है ना, तो ये साइंस कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। इवन एक्वेरियस साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, लीब्रा भी। सो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है, जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, पाइसिस में एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है, पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंबर चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। इवन लीब्रा साइन में प्लांट्स प्लेस्ड हो सकता है, 7th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकता है, 12th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मार्स वीनस एक साथ कंजंक्ट हो, मार्स वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मार्स के आगे वीनस या मार्स के पीछे वीनस भी हो सकता है, जो कि लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके लिए नज़र आ रहा है। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। इवन वीनस, मार्स या फिर जुपिटर में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, वो जुपिटर या फिर वीनस या फिर मार्स होगा, इनमें से कोई प्लैनेट होगा। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do as a tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.